So now we consider more general cases. For example, solve this equation, which is not directly wave equation, but if you factor, you will get similar kind of equation. So this is initial value problem. So we have two conditions at t equals to 0, initial displacement and initial velocity. So firstly, you need to factor the differential operator as we did in second order linear PD. You can factor the differential operator. So this is just del 2u by del x del t minus 4 time. So factor it m square minus 3m minus 4. Okay, so you can factor it. So factors are so order order doesn't matter. You can write them like this. You can also write t first, then x. As we know the solution corresponding to this equation. So you factored it into two linear factor, ut minus, ये किया था ना हमने फैक्टर, so two linear factors. So if you want to write t first, you can write, or you can take minus 4 outside if you want. So this is, so equals to 0. You can discard this minus 4. So which is equivalent to 2 first order PD. If I let this factor, second factor as V, then we have Vt minus 1 by 4 Vx equals to 0, and first one is of course ut plus ux equals to V. So in order to find solution, you can proceed in the way that we already studied. So corresponding to these two linear factors, what was the solution? इसका सॉल्यूशन क्या था? माइनस वाले फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स प्लस सी टी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जी एक्स माइनस सी टी. सो यू कैन राइट सोल्यूशन डायरेक्टली. और हमने पहले भी एग्जांपल स्टडी किए थे, और आप फर्स्टली इसको सॉल्व कर लो, वी वाला इक्वेशन. फर्स्टली सॉल्व इट, फाइंड वी, देन फिट वी हियर, देन फाइंड यू. If you remember the beginning lecture of linear
लीनियर पीडी। तो लीनियर फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन क्या होगा? सी की जगह जो सी था, सी की जगह 1/4 है, सो फर्स्ट फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग होगा एफ एक्स प्लस 1/4 t, इस फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग। और सेकंड फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे सी था, ये सी, सी की जगह 1 है, सो कोरस्पॉन्डिंग टू दिस फैक्टर सोल्यूशन विल बी जी एक्स माइनस टी। So you can write, you can use the solution of wave equation to write the solution of this kind of equation, which can be factored into linear factors. लिख के बताओ क्या होगा सोल्यूशन, या भूल गए? Then use initial conditions to find f and g. Hmm? Okay, so solution is corresponding to first factor fx plus 1/4t, and corresponding to second factor x minus t, where f and g are two arbitrary functions. So to find f and g, now we need to use initial conditions. So initial conditions, first one is ux0 equals to x square. So fit in solution, what you got? x0, t0, so fx t0 कर दो यहाँ पे, so fx plus g of x equals to x square. Second condition in time derivative, ut x0. So firstly differentiate it with respect to t. t के सेंस में करोगे तो 1/4 बाहर आएगा, 1/4 f डैश, t को 0 कर दो बाद में। सेकंड फैक्टर से -1 बाहर आएगा, ठीक है, g डैश x इक्वल्स टू e पावर x. नाउ प्रोसीड in the way as we did wave equation with the initial conditions. So find f and g by solving these two equations. करो, let me know the answer. You can proceed in two ways, either differentiate first or integrate second. You can differentiate first or integrate second. Let me know the answer quickly. It is same as we did in proving D'Alembert's principle. You can integrate second, plug in the value in first, or use direct D'Alembert principle.
ये आ जाएगा यहाँ से, सॉरी g dash x. So on integrating, you got fx minus 4 times gx equals to 4 0 to x e power s ds plus f0 minus g0. By adding this and this, पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. First multiply with 4, then by adding you got f, and by subtracting you got g. बोलो वैल्यू क्या आएगा? नो. So on adding you got 5fx equals to 4x square plus 4 0 to x. इसका भी आप इंटीग्रल कर ही सकते हो, e पावर x minus 1 आ जाएगा. And if you subtract this minus this, so 4gx 8 8gx equal to 4x square minus 4 0 to x e power s ds. ये 4g0 आएगा. So firstly this इनको ऐड किया है तो इधर जाके बनेगा 4 और 1 5f0 minus 4g0 minus 5f0 plus 4g0. तो यहाँ से fx का वैल्यू निकालो, तो डिवाइड
with 5. सर ये 5f0 कैसे होगा? So fx is 4/5x square plus 4/5 e power x minus 1 plus these two terms, and gx is 4/5 x square minus 4/5 e power x minus 1. So finally fit in the equation and write the solution. So therefore uxt, so fx की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी फंक्शन है उसको 4/5 से मल्टीप्लाई करेगा, 4/5 x प्लस t/4 उसका स्क्वायर कर देगा, एंड 4/5 उसको मल्टीप्लाई करेगा एक्सपोनेंशियल x प्लस t/4 अब ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा जब दोनों को आप ऐड करोगे, और सेकंड वाले से ये मिलेगा माइनस में, e पावर x माइनस टी एंड 4/5 x minus t square. In the similar way as we proceed with calculation, एक बार चेक कर लेना, 4 अच्छा इधर तो 8 था, तो ये 1/, सर जो सेकंड इक्वेशन बनाई है 8gx वाली वो 4 8 ठीक लिखा है मैंने? तुम लोगों की आवाज तो आ नहीं रही, पता नहीं बोल नहीं रहे या नहीं आ रही। ठीक लिखा है? सर सेकंड इक्वेशन 8gx वाली वो गलत लग रही है। थोड़ा जोर से बोलो थोड़ा। सेकंड सर जो सेकंड इक्वेशन है जो 8gx वाली बनाई है, अगर सिंपल ऐड करेंगे तो 5gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर अच्छा, माइनस हाँ 4 से 4 मल्टीप्लाई इंटू की जरूरत ही 0 नहीं है टू कितना, एक्स। सॉरी, हाँ ये जरूरत ही नहीं है इसमें। यस सर, यस सर। 5ex इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 टू एक्स ई रेज़ टू पावर एस टी एक्स एस। के माइनस 4, ये ठीक है ना आगे? सर 4x स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ एक्स के लिखा है, एक्स के ये आगे ठीक है। सर ये 5 इंटू एफ ऑफ 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, ये कैसे लिखा है आपने? ये इधर जब आप इंटीग्रल करोगे ना, इनका इंटीग्रल करोगे लेफ्ट में, so if you integrate left hand side 0 to x f dash x minus 4 g dash x s कर दो इसको ds, तो इंटीग्रल आ जाएगा एफ एक्स, अपर लिमिट फिट करोगे
फिर लोअर लिमिट भी फिट करोगे ना नेगेटिव साइन से, तो वहां से आएगा ना, फर्स्ट में आ जाएगा f0 प्लस 4g0, ये चीज आएगी। तो राइट में जाके ये उल्टा हो जाएगा साइन इसका। टेक दिस इन राइट हैंड साइड। यू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, देन चलो करना कैलकुलेशन, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सर जो फिर आपने एफ ऑफ एक्स माइनस 4gx वाली इक्वेशन बनाई है, हाँ, उसमें फिर एफ ऑफ 0 माइनस 4g(0) नहीं आना चाहिए था? किस पे? सर जो एफ ऑफ एक्स माइनस 4gx लिखी है, उसके राइट हैंड साइड में एफ ऑफ 0 माइनस 4g(0) नहीं आना चाहिए था? ऊपर सर ये वाली तो सही है, उसके ऊपर जो आपने लिखी है फर्स्ट के ऊपर। सेकंड वाली गलत है। सर जो इंटीग्रेशन तो के बाद इसको लिखी है ना दूसरे आपने। वे में करते हैं, जस्ट दूसरे वे में करते हैं इसको, रिवर्स वे में करते हैं। चलो, सो यू हैव एफ डैश एक्स माइनस 4g डैश एक्स इक्वल्स टू 4e पावर x। सो यू हैव फर्स्ट इक्वेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो अगर आप एस में लिखना चाहो, एफ डैश एस प्लस जी डैश एस इक्वल्स टू 2 ऑफ एस। और सेकंड इक्वेशन क्या देगी? एफ डैश एस माइनस 4g डैश एस इक्वल्स टू 4e पावर s। अब अब एक बार f डैश s निकाल लो, एक बार g डैश s निकाल लो। सो व्हाट विल बी f डैश s? मल्टीप्लाई विद 4 देन ऐड। ठीक है, तो 5 f डैश s आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 8s, ऐड कर रहे हैं ना, प्लस 4e पावर s। तो यहाँ से f डैश s कितना है? 8/5s प्लस 4/5e पावर s। ठीक लिखा मैंने? यस सर। ठीक है, अब f डैश की वैल्यू या तो एक में फिट कर दो किसी में, देन फाइंड g डैश s। या आप प्लस माइनस करना है तो सिंपली माइनस कर दो। अगर सेकंड माइनस फर्स्ट, तो f डैश विल कैंसिल आउट। या फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो g डैश माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5g डैश s इक्वल्स टू 2s माइनस 4e पावर s। यस प्लस 4e रेज़ टू, यस सर, हाँ जी, माइनस। जस्ट माइनस किए हैं, 2s माइनस 4, ये 5 हो गया, f डैश s कैंसिल हो जाएगा, 4/5e पावर s। So integrate both to find f and g। तो फर्स्ट का इंटीग्रल कर लो, डेफिनेट इंटीग्रल। तो f डैश x fx इक्वल्स टू 8/5 0 to x s ds प्लस 4 और सेकंड का इंटीग्रल कर लो, 2/5 find f and g and fit in the equation। So g dash gx। So final solution is, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आप करना है इसमें।
सर 4/5 f एक्चुअली e raised to power x plus t by 4 e power x minus t plus 4/5 x plus t by 4 square x square मिलेगा ये plus 1/5 x minus t f minus t square something like that. सर इंटीग्रेशन करते वक्त एफ ऑफ जीरो भी आएगा? हाँ एफ ऑफ जीरो भी आएगा, आप उसमें ये यूज कर सकते हो, वहां पे एफ जीरो प्लस जी जीरो बनेगा, उसको आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब वो तो जीरो ही बनेगा ना, ओके सर। वो जीरो ही बन जाएगा, फिर वो दोनों जब ऐड होंगे ना एफ जीरो प्लस जी जीरो आएगा, वो आएगा, हाँ उसको एफ एक्स माइनस एफ जीरो आएगा लेफ्ट में, तो इधर एफ जीरो ऐड कर देना, इधर आपने जी जीरो ऐड कर देना, ठीक है। और जब इनको ऐड करोगे ना तो एफ जीरो प्लस जी जीरो, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इसको यूज कर लेना एक्स के, तो ये जीरो ही आएगा फिर ये। ठीक है, कर लोगे अब आगे होएगा, जस्ट इंटीग्रल कर लो इनके, वैल्यू वैल्यू निकाल दो, वैल्यू फिट वैल्यू आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये 4 ई पावर एक्स आ गया, बाकी कांस्टेंट आने हैं साथ में, ये टर्म जो होगा ये 2/5, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर ही आएगा, ये तो लोअर लिमिट पे जीरो बन जाएगा, ई पावर एक्स में आएगा ई पावर एक्स माइनस 1, तो जो फर्स्ट वाले से कुछ होगा वो कुछ कैंसिलेशन होकर जो आप फाइनल आंसर लिख देना जो बचेगा। So this is the final answer. You can, एक हमने पिछली बार एमएसटी में पूछा था, इसमें फैक्टर था 4, for example solve uxx plus uxt minus 20 utt equals to 0, ux0 equals to phi of x and utx0 equals to psi of x. Solve this initial value problem. First factor the operator. So factors are ये वही तो नहीं है, different. चाहे तो आप 4 को माइनस भी लिख सकते हो, बाहर लिख सकते हो, so you can write जैसे हमने पहले लिखा था, and 1/5 del by del x u equals to 0. So corresponding to each linear factor, solution is first factor के corresponding x plus t by 4 इसके, और second के corresponding g x minus t by 5. So use conditions, initial conditions को use करके आप try to find fx and gx. F plus g equal to phi of x. First condition, ux0 equals to phi of x. Second condition,
1/4 f dash x minus 1/5 g dash x equals to psi of x. इनको सॉल्व करना जैसे पहले एग्जांपल में किया है. I am writing f and g. F is 1/9. 4 times 5x plus 20 times प्लस कांस्टेंट टर्म आएगा यहाँ पे कांस्टेंट एंड सेम फॉर जी एक्स 1/9 5x minus 20 0 to x psi s ds. जो कांस्टेंट यहाँ पे आएगा वो माइनस में आएगा. ठीक है. therefore final solution is ux equals to 1/9 4 times 5 x plus t by 4 plus 5 times ये 5/9 सेकंड वाले से पहले से 4/9 5x minus t by 5 जो इंटीग्रल वाली टर्म है वो देंगी 20/9 x minus 5/t से लेके x plus x minus t by 5 x minus t by 5 to x by t by 4 psi s ds. So this is the solution of wave equation. Also you can solve a similar kind of problem by using the techniques that you have studied earlier in second order linear equations. And one more exercise, show that the wave equation has the following property. First one is any translation u x minus y t y fixed is also a solution of wave equation. So if u is a solution, so u x minus y, x में translate कर दो x plus minus y. Any derivative, say ux of a solution is also a solution. So these are important properties of solution of wave equation. Third one is the dilated function that you multiply a with x. Okay, so xt की जगह आप क्या करो, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ax और at ले लो. So that is also a solution for any constant a. So you can immediately prove these things from wave equation. So जैसे फर्स्ट प्रूफ करना है, so proof are very simple. So अब wave equation क्या है, u t t equals to c square u x x. ठीक है. So यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, u is a function of x and t. तो
तो फर्स्ट पार्ट जैसे प्रूव करना है आपने, तो अब u x माइनस वाई है, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो u t t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यू कैन राइट दिस t के सेंस में कर रहे हो, फर्स्ट का कोई इफेक्ट होना ही नहीं है, ठीक है। अब वेव इक्वेशन में फिट करोगे, u इसकी वैल्यू कंप्यूट करोगे u t t सेकंड डेरिवेटिव, जस्ट x की जगह x माइनस वाई है, तो वहां से ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर u x x x माइनस वाई टी। अब आप उसको ये भी लिख सकते हो, x पे y तो कांस्टेंट फिक्स है, यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हो, यानी कि ये लिख रहा हूं मैं, या शॉर्ट नोटेशन में लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, सी स्क्वायर यू एक्स माइनस वाई टी एक्स एक्स। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव को शो करना यू एक्स को, ठीक है। तो यू एक्स का टी के सेंस में 2 बार करो आप डेरिवेटिव, अब आप इसको ये भी लिख सकते हो, ठीक है, यू एक्स टी टी है ये, इसको आप और ये भी लिख सकते हो यू टी टी एक्स, डेरिवेटिव में ऑटो चेंज कर सकते हो, तो यू टी टी क्या है, सी स्क्वेयर यू एक्स एक बार पहले ही है, 2 बार और आ जाएगा यू एक्स एक्स, इसको आप ये भी लिख सकते हो सी स्क्वेयर यू एक्स एक्स टी और यू एक्स। तो जो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यू की जगह आपका क्या यू एक्स है, so any derivative is also a solution. Similarly you can prove third part, इसमें हमने क्या लिखा है, u ax at, टाइम के सेंस में 2 बार डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, 2 बार करोगे तो at है, सो 2a विल कम आउटसाइड, सो a स्क्वायर utt ax at, इक्वेशन से वैल्यू फिट कर दो, utt क्या है, c स्क्वायर uxx। अब इसको आप ये लिख सकते हो c स्क्वायर u ax at xx, क्यों, क्योंकि xx के सेंस में 2 बार करोगे तो 2a वो भी बाहर देगा a स्क्वायर, ठीक है, तो बोथ आर सेम थिंग। सो इन अदर वर्ड्स these are important properties, so any translate, you can translate x, you can write x plus minus something, so that is also a solution for any fixed number। any derivative of solution ux भी है ut भी है, ये तो हमने एक प्रूव किया, you can also prove that ut, so any derivative of solution, any derivative ux ut, that is also a solution of wave equation। and third one is dilated function, so you multiply x with a, also t with a, so that is also a solution for any constant। one more short example, yesterday we proved the conservation of energy, use the energy conservation of wave equation, prove that the only solution with phi equals to 0 and psi equals to 0 is u equals to 0।
प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वेव इक्वेशन स्टैंडर्ड के लिए प्रूफ कर किया था हमने कल। जो एनर्जी है दैट इज 1/2 काइनेटिक एनर्जी रो ut स्क्वायर 1/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 tux स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है, ux0 जो फाई एक्स होता है, सो दैट इज 0। ठीक है, फाई 0 है, सो दिस मीन्स नो पोटेंशियल एनर्जी। at t equals to 0. Also, there is no velocity. So this implies there is no kinetic energy. At t equals to 0. अब कंजर्वेशन क्या कहता है? By conservation, dE by dt equals to 0. So as time varies, this will remain constant. यही था ना कंजर्वेशन का मीनिंग। तो शुरू में 0 है, so this means E equals to 0 for all t. अब E 0 है तो E किस पे डिपेंड कर रहा है? UTs पे, UX पे। डेफिनेट इंटीग्रल है, पॉजिटिव है, इंटीग्रैंड इज पॉजिटिव। तो ये पॉसिबल कब होगा? व्हेन ut इक्वल्स टू 0, ux इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स u इज ए कांस्टेंट। ओके, बट अब u इक्वल टू कांस्टेंट तो आ गया, सो u इक्वल्स टू कांस्टेंट, बट इनिशियल कंडीशन सेज ux0 equals to 0. So this implies this constant is 0. So u is 0 for every x and t. Okay. Conservation of energy. So initially there is no kinetic energy, there is no potential energy. और कंजर्वेशन क्या करता है? एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। जो बिगनिंग में है वही एंड वही लेटर ऑन भी रहेगा। सो दिस इंटीग्रल इज 0, दिस इज 0। अब ये कब होगा? इसमें दो इंटीग्रल हैं। फर्स्ट रो ut स्क्वायर, रो कांस्टेंट है, ut स्क्वायर और पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का इंटीग्रल 0 नहीं हो सकता अनलेस यू हैव दैट क्वांटिटी 0। तो मतलब दोनों ही 0 हैं, ut is also 0, ux is also 0. So u does not depend on time, does not depend on position x. So u is constant. But initial condition says that क्योंकि phi 0 है तो ये 0 है. So this means this constant is also 0. So u will remain conserved. Any query?